Hello, students. Once again, you are welcome. A warm welcome at Hamdisa English classes. This is Hemant. Once again, presenting you the explanation of the lesson number 6A, that is 100 dresses part 2 from 10th class first flight. The writer is Al Esther. The second part of 100 dresses. As I explained you first part, after that I am on the watch to explain you the second part of 100 dresses. Once again I would like to repeat, this is from class 10th NCERT first flight. So as usual I request you to open your book, go through line by line and try to explain, try to understand. I am explaining you and you try to understand nicely, so you won't have any problem to face your examinations. So far as question answers, extracts, MCQs are concerned, you will be able to solve each and every questions at the time of board examination everywhere. So let us start. And once again I would request other to subscribe, like and share my channel. So let us start. That is pronunciation and translation from 100 dresses part 2 lesson number 6A from first flight 10 class. Writer is Al Esther. While the class was circling in the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped for her hands. जब कक्षा में सारे बच्चे जमा हो रहे थे, मॉनिटर प्रधानाध्यापक के कार्यालय से मिस मेजन के लिए एक नोट लाया। मिस मेजन ने उसे कई बार पढ़ा और कुछ समय तक उसके बारे में ध्यान से सोचती रही। फिर उन्होंने ताली बजाई। अटेंशन क्लास, एवरीवन लुक टू दिस सीट। ध्यान दीजिए, सब बच्चे अपने कक्षा में अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइएगा। When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. जब पैरों की आवाज़ें बंद हो गई पूरी तरह से और कमरे में एकदम शांति छा गई, मिस मेजन ने कहा कि मेरे पास वांडा के पिता का एक पत्र आया है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। मिस मेजन शुड, once again I would repeat this line. Miss Mason stood there a moment and silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manners dedicated, and that was totally inclination, and that her manners indicated also that there what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely and Miss Mason read it brief note. मिस मेजन एक्शन के लिए खड़ी रही और चुप्पी से कमरे में तनाव उत्सुकता बढ़ रहा था। अध्यापिका ने धीरे से जानबूझकर अपना चश्मा ठीक किया और समर्पित भाव से उनके हाव भाव संकेत दे रहे थे कि क्या आने वाला है। वांडा के पिता का यह पत्र बहुत महत्वपूर्ण बात थी। जब मिस मेजन छोटा सा नोट पढ़ रही थी, सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। डियर टीचर, माय वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। जैक ऑल्सो। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। नो मोर हॉलर पोलाइट, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason looked up her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. Dear teacher, my Wanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to big city. No more horror, no more asked why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petrosky.
The deep silence made the reading of this letter. Miss Wilson took off her glasses, blew them, and wiped them on her soft white handkerchiefs. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice very low. हिंदी अनुवाद इसका है, प्रिय अध्यापिका, मेरी वांडा अब से आपके स्कूल में नहीं आएगी, और जैक भी, उसका भाई। अब हम बड़े शहर में जा रहे हैं। अब जोर जोर से गुस्सा दिलाने वाले शब्द और नहीं क्यों पूछेगा कि नाम इतना अजीब क्यों है। बड़े शहर में काफ़ी सारे नाम अजीब होते हैं। आपका अपना जेम पैट्रन्स की। पत्र पढ़ जाने के बाद गहरा सा सन्नाटा छा गया। मिसेस मेजर ने अपना चश्मा उतारा, उस पर फूंक मारी और सफ़ेद नर्म रुमाल से उसे साफ किया। उसके बाद उन्होंने दोबारा उसे लगाया, कक्षा की ओर देखा। जब उन्होंने बोला कि उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anybody's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what said was thoughtfulness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate, said both I and I want you all to think about it. मुझे पूरा विश्वास है कि यह कमरा नंबर 13 में किसी भी लड़के और लड़की ने जानबूझकर या अनजाने में किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया होगा, सिर्फ इसलिए कि उसका नाम कुछ लंबा या अलग सा था। मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि जो कुछ ना समझी या अनजाने में कहा, मुझे पता है कि जैसा मैं सोचती हूँ वही आप भी सोचते हो। जो कुछ भी हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, दुर्भाग्यपूर्ण, काफ़ी दुखद भी, और दोनों ही। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में सोचें अच्छी तरह से। द फर्स्ट पीरियड वॉज ए स्टडी पीरियड. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. Too, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood a while silently, and that was just as bad as what Peggy had done. She was a coward. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie, had thought very well doing wrong. She could put her Wanda's shoes. पहला पीरियड पढ़ाई का था। मेडी अपना पाठ करने की कोशिश कर रही थी। जब अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित नहीं कर पा रही थी, अपने अंदर बड़ी बेचैन सी लग रही थी। यह सच है कि उसे कभी भी अच्छा नहीं लगा था पेगी का वांडा से यह पूछना कि उसके अलमारी में कितनी पोशाकें हैं। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में बता चुका हूँ कि मेडी को ये कहीं कहीं बुरा लगता था कि पेगी उसे बहुत ज़्यादा चिढ़ाती थी। अब उसके मन में बेचैनी से होने लगी, उद्विग्नता होने लगी, और उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। वो उसका साथ देने को चुपचाप खड़ा रहा करती थी, और जितना ही बुरा था, जितना कि पैगी ने किया, उतना ही बुरा था यह सब कुछ। और इससे भी बुरा था वो कायर थी। कुछ भी हो, पैगी को नहीं लगा। क्या कभी भी पैगी को ही नहीं लगा कि वो स्वार्थी है? पर मेडी ने सोचा था कि ये सब गलत हो रहा है। अपने वांडा को अच्छी जगह रख सकती थी। Oh my goodness, wasn't there anything she could do if only she could tell Wanda that she had not been to hurt her feelings? She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seems to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie, had to do something. She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not moved away. Maybe Peggy would climb her heights with her, and they would tell Wanda had won the contest, that they thought she was smart and 100 dresses were beautiful. हे भगवान, क्या ऐसा कुछ नहीं था जो वो कुछ कर सकती थी? काश वो वांडा को बता पाती कि उसका इरादा उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। वो घूमी और उससे नज़र पैगी पर डाली, लेकिन पैगी ने ऊपर तक नहीं देखा। वो शायद पढ़ने में बहुत व्यस्त थी। चलो, पैगी को बुरा लगाओ या नहीं लगाओ, पर मेडी को कुछ करना पड़ेगा। उसे वांडा पेट्रोस्की को ढूंढना था। शायद वह अभी तक न गई हो, शायद पैगी को भी उसके साथ
चढ़ाई चढ़े और वांडा से कहे कि उसने प्रतियोगिता जीत ली है। वे जानते थे कि वह होशियार है, सो पोशाकें बहुत सुंदर है। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended causelessness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." So Peggy had the same idea. Maddie glowed. Peggy was really all right. She was all right. The two girls hurried out of the building, up the street towards Boggins Heights, the parts of town, and that was such a forbidding air on a kind of November afternoon, drizzly, damp and dismal. जब दोपहर को स्कूल ख़त्म हो गया तो पैगी ने लापरवाही का नाटक करते हुए कहा, चलो चलते हैं, देखते हैं कि उस बच्चे ने शहर छोड़ दिया कि नहीं। तो पैगी के मन में ये विचार यही था। मेडी खुश हो गई। पैगी सच में एकदम सही है। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी बिल्डिंग से बाहर निकली, बैगिंग स्ट्रीट की तरफ चल पड़ी। जो शहर का वो भाग था जहाँ बदबू भरा वातावरण था। नवंबर की दोपहरी में सब कुछ सीला सा और सूना सा था। Well, at least, said Peggy gruffly, I never did call her a foreigner or make fun of her name. I never thought she had the sense to know she was making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gay. Look how she can do. पैगी ने कठोरता से कहा, देखो कम से कम मैंने कभी उसे विदेशी तो नहीं कहा और नहीं कभी उसके नाम का मैंने मजाक बनाया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे समझ में आ जाएगा हम उसका मजाक बनाया करते थे। मुझे लगा कि वो बुद्धू सी सुस्त सी थी और देखो तो वो कैसे चित्र बनाती है। Maddie could say nothing. All the hope was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry that had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away and everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. मैडी कुछ नहीं कह पाई, कुछ भी नहीं कह पाई मैडी। बस ये उम्मीद कर रही थी कि उसे वांडा मिल जाए और वो उससे कहना चाहती थी उन्होंने जो कुछ भी उसके साथ किया उसके लिए बेहद 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 शर्मिंदा है। कैसे पूरा स्कूल समझता है कि वो कितनी अच्छी है। देखो प्लीज़ कृपया करके यहाँ से मत जाओ और तुमसे अब आगे से बहुत अच्छे पेश आएंगे। जो तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करेगा ना वह पैगी उसका विरोध करेंगे। द टू गर्ल्स हरीड ऑन। दे होप टू गेट द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर द डार्क। दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी चल रही थी और पहाड़ की चोटियों पर अंधेरा होने से पहले पहुंचने की उम्मीद कर रही थी। आई थिंक दैट वेयर द पेट्रोल्स की लीव सेड मैडी पॉइंटिंग टू ए लिटिल वाइट हाउस। मुझे लगता है कि पेट्रोल की यहाँ रहते हैं। मैडी ने छोटे छोटे सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए कहा, wisp of old grass stuck here and there along the pathway like think kittens. The house and its past little yards looked shabby but clean. It reminded Maddie of Wonder Woman dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. पुरानी घास के छोटे छोटे टुकड़े पूरे रास्ते पर यहाँ वहाँ पड़े थे। ऐसे लग रहा था जैसे दुबले पतले बिल्ली के बच्चे हों। घर और छोटा सा आंगन साधारण सा लेकिन साफ था। ये देखकर मैडी और वांडा को वही पोशाक याद आ गई जो रंग उड़ी नीले रंग की सस्ती सी सूती पोशाक थी, लेकिन हाँ साफ सुथरी भी थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still, there was no answer. घर के अंदर जरा सी भी चहल पहल नहीं थी। पैगी ने जोर से दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह मैडी पीछे घूमकर पीछे के प्रांगण में गए, वहाँ भी खटखटाया, तब भी उनको कोई जवाब नहीं मिला। There was no doubt about it. The Patrons were gone. How could they ever met amends? अब कोई शक की गुंजाइश नहीं थी कि पेट्रोल जा चुके हैं, वह कैसे बात को सही करेंगे। They turned slowly and made their way back down the hill. वे धीरे से मुड़े और चढ़ाई से नीचे आने लग गए। Well, anyway, said Peggy, she has gone now, so what can we do?
Besides, when I was asking her about her dresses, she probably was getting good ideas for her drawing. She might not even have won the contest otherwise. हाँ, देखो जो हुआ, पैगी बोली अब जा चुकी है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। यह अलग बात है कि मैं उससे पोशाकों के बारे में पूछ रही थी, उससे शायद चित्रकार के नए नए विचार आ रहे थे, वरना प्रतियोगिता में जीत नहीं पाती। मैडी ने यह विचार ध्यानपूर्वक अपने दिमाग से हटा दिया, क्योंकि थोड़ा सा सोचती भी तो उसे बुरा न लगता। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर हिज हेड, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. But that night she could not get to sleep. She thought over Wanda and her faded blue dresses and the little house she had lived in. And she thought of glowing picture, the 100 dresses were made, they were all lined up in the classroom. All the time that last, Mattie sat up bed and pressed her forehead tightly in her hands and really thought badly. She was the hardest thinking that she had ever done. After a long time, she reached an important conclusion. She was never going to stand by and say nothing again. ध्यानपूर्वक मैडी ने अपने दिमाग से विचार हटा दिया था, क्योंकि अगर थोड़ा सा सोचती तो उसे बुरा न लगता। लेकिन वो रात भर सो नहीं पाई। वो वांडा, उसकी नीली पोशाक और उसके छोटे से घर के बारे में सोचती रही जहाँ वो रहती थी। उसने उस शानदार चमकती हुई 100 पोशाकों के बारे में भी सोचा जो क्लास में कतार में लगी थी। आखिरकार मैडी बिस्तर पर बैठ गई और अपने हाथ से अपना माथा जोर से दबाया और सोचती रही। इतना ज़्यादा अब तक उससे किसी बात पर नहीं सोचा था। बहुत देर बाद वह एक महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंच गई। बिना मतलब के शांति से किसी का चुपचाप समर्थन नहीं करेगी। इफ़ शी एवर हर्ड एनीबडी पिकिंग ऑन समवन बिकॉज दे वर फनी लुकिंग her because they had strange names, she would speak up. Even if she meant losing Peggy's friendship, she had no way of making things right with Wanda. But from now on, she would never make anybody else that unhappy again. अगर वह अब से कभी भी सुनेगी कि कोई किसी का मजाक बना रहा है क्योंकि वो दिखने में अजीब है या उनके अलग से नाम हैं, वो उन लोगों के खिलाफ बोलेगी और इसके लिए पैगी से दोस्ती ख़त्म हो जाए। उसके पास कोई तरीका नहीं था। हो जाए पैगी से दोस्ती ख़त्म तो हो जाए, अब उसके पास कोई तरीका नहीं था। एक ही चारा बचा था, वो वांडा के साथ जो हुआ मेरे द्वारा स्पेशली मैं पैगी के कहने में आके वांडा को चिढ़ाती चलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था और मुझे मन ही मन बहुत अखर रहा है अब वांडा के साथ सही करने का। लेकिन वो आगे से किसी को इतना दुखी नहीं करेगी। यदि वांडा उसके पास आएगी तो मैं उसको प्रॉमिस करूँगी कि अब उसे कोई उसका दिल नहीं दुखाएगा। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विद पैगी। They were writing a letter to Wanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda that she had won. That they told her how pretty her drawings were, and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. They had been to say that they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friends, and they signed it with a lot of X for love. They mailed the letter to Boggins, writing please forward on the envelope. यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा, शनिवार के दिन को मैडी दोपहर में पैगी के साथ थी। वे वांडा पेट्रोस्की को पत्र लिख रहे थे। वह ऐसी ही साधारण मैत्री पत्र था जिसमें उन्होंने प्रतियोगिता के बारे में लिखा था और लिखा था कि वांडा ने प्रतियोगिता जीत ली है। उन्होंने उससे कहा कि उसकी चित्रकारी बहुत सुंदर थी। उन्होंने उससे पूछा कि वह जहाँ रह रही है वहाँ उससे अच्छा लग रहा है और उससे अपनी नई अध्यापिका पसंद है।
वे कहना चाहते थे कि उन्हें अपनी गलती पता चल गई है, पर पत्र सिर्फ साधारण पत्र की तरह ही खत्म हुआ। उन्होंने बहुत सारा प्यार लिखकर अपने हस्ताक्षर किए। उन्होंने उस बोगिंस हाइट्स के पते पर मेल किया और लिफाफे पर लिखा कि कृपया आगे नए पते पर भेजें। Days passed and there were no answer, but the letter did not come back. So maybe Wanda had received it. Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. You could not blame her. दिन गुजरते रहे पर कोई जवाब नहीं आया, लेकिन वह पत्र भी वापस नहीं आया। इसलिए हो सकता है कि वांडा को पत्र मिल चुका था। शायद वह इतनी दुखी और गुस्सा है कि वह जवाब ही नहीं देना चाहती थी। आप उसे नहीं दोष दे सकते थे। क्यों दोष देंगे भाई, उसकी क्या गलती थी? Weeks went by and still Wanda did not answer. Peggy had begun to forget the whole business, and Mandy put herself to sleep at night, making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got? And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did not before answering, Maddie would cry out, stop, then everybody would feel ashamed the way she used to feel. हफ्ते गुजरते रहे, जब भी वांडा का जवाब नहीं आया। पेगी अब ये सारी बातें भूलने लगी थी और मेडी रात भर वांडा के बारे में भाषण लिखती रही थी। किस तरह वांडा को लड़कियों के भीड़ से बजाएगी, उससे ये कहकर चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। और इसके पहले कि वांडा अपने होंठ कसकर भींचे, जैसे वह जवाब देने से पहले दिया करती थी, मैडी जोर से चिल्ला पड़ेगी, बंद करो। तब सबको शर्मिंदगी महसूस होगी कि उसे महसूस होती थी। नाउ इट वॉज द क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड. Christmas bells and a small tree decorated the classroom. On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning. जब क्रिसमस आ गया था, ज़मीन पर बर्फ़ ही बर्फ़ बिछी हुई थी। क्लास में क्रिसमस की घंटियाँ, छोटा सा क्रिसमस ट्री सजाया गया। छुट्टियों के पहले स्कूल के आखिरी दिन अध्यापिका ने क्लास में एक पत्र दिखाया जो उन्हें सुबह ही मिला था। क्या मिला था सुबह पत्र? यू रिमेंबर वांडा पेट्रोस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वोन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, बिकॉज नाउ आई कांट सेंड हर मेडल। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। मैं आप सबको वांडा पेट्रोस्की याद है क्या? मैं उस वांडा पेट्रोस्की के बारे में बात कर रही हूँ जो स्कूल छोड़ के चली गई। बहुत अच्छी कलाकार थी जिसने प्रतियोगिता जीती थी। उसने देखो तो मुझे पत्र लिखा है और मुझे खुशी हो रही है। मैं जान गई हूँ कि वो कहाँ रहती है। अब मैं उससे पदक मेडल भेज सकती हूँ। उसका पत्र आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। क्या पत्र था? वो टीचर ने पढ़ा। द क्लास सेट अप विथ ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंस्टेंटली। डियर Miss Mason, how are you? And the room 13, please tell the girls they can keep how those 100 dresses, because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closets. I'd like that girls Peggy to have the drawings of the green dresses with red trimmings, and her friend made it to have the blue one. For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. Yeah, that was the letter. Like that girl, Peggy, to have the drawing of the green dress with red trimming, and her friendly mates have the blue one. For Christmas, I miss that school. My new teacher is not equalized with you. Merry Christmas to you and everybody. Yours truly, Wanda Petronsky. इसका हिंदी अनुवाद ऐसा है। पूरी की पूरी कक्षा जिस जिज्ञासा में बैठ गई और ध्यान से सुनने लगी। प्रिय मिस मेजन, आप और आपका कमरा नंबर 13 कैसा है? कृपया आप लड़कियों को बता दीजिएगा कि वे उन 100 पोशाकों को ले सकती है, क्योंकि मेरे नए घर में 400 नई पोशाकें हैं जो मेरी अलमारी में एक कतार से लगी हुई है। मैं चाहती हूँ उस लड़की पैगी को हरी पोशाक जिस पर लाल झालरें लगी वो मिले, और मेरी मित्र मेडी को नीली वाली।
क्रिसमस पर वो मुझे वो स्कूल याद आता है। मेरी नई अध्यापिका अपनी बड़ी आपकी बराबरी तो बिल्कुल नहीं कर सकती, और आपको सब लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं, आपकी अपनी वांड्रा पेट्रोस्की। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings were carefully. All the houses had red and holly in the windows. Outside the grocery stores, hundreds of Christmas trees were stacked, and on the window, candy, peppermint sticks, and cornucopious, shiny, transparent papers were snug, and all smelled like Christmas light, shining everywhere, reflected different colors on the snow. स्कूल से घर वापस जाते समय मैडी और पेगी ने बहुत सावधानीपूर्वक अपने चित्र पकड़ के रखे थे। हर घर में रीत, रीत का मतलब है कि क्रिसमस में लगने वाली श्रद्धांजलि वाली माला, वो होली क्रिसमस में लगाने जाने वाला सदाबहार शूलपर्णी पेड़ जिसको बोलते हैं, खिड़कियों पर लगे थे। दुकानों पर क्रिसमस ट्री के अंबार लगे थे, और खिड़कियों पर पेपरमिंट की टॉफियाँ और काफ़ी चमकीली संख्या में चमकीले पारदर्शक कागज़ टंगे हुए थे, और पूरी वातावरण में क्रिसमस की महक थी। हर जगह रोशनी चमक रही थी, जो बर्फ़ पर जाकर अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो रही थी, बदल रही थी। बॉय 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 2-3 times, Peggy said. This shows they really like us. This shows the matter that she really likes us. It shows she got our letter, and this is her way of saying that everything's all right. And that's that. I hope so, said Betty sadly. She felt sad because she knew she would never see the little light lip polished girls again, could not ever easily back things right between them. Boy, लड़को लड़को 2-3 बार पैगी ने बोला। यहाँ देखो क्या मतलब है, देखा लड़के? पैगी ने कहा इसका मतलब कि वो सचमुच हमें पसंद करती। इससे पता चला है कि हमारा पत्र उसे मिल गया है, और उसका कहने का तरीका है कि सब कुछ ठीक ठाक है। बस बात यहीं पे ख़त्म हो गई। हाँ हाँ, आशा तो है, मैडम ने दुखी होकर कहा। उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि वो छोटी भीचे होटे वाली पॉलिश लड़की को कभी नहीं देखेगी, अब कभी देखने नहीं मिलेगी। उनके बीच की गलत फहमियों को वो कभी भी सही नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिnned her drawings over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. The shabby room came alive from the brilliantly and colors. Maddie sat down on her bed and looked at the drawing. She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. वह घर गई, उसने उस चित्र को अपने बेडरूम के गुलाबी फूलों पर वॉलपेपर पर जहाँ थोड़ा सा पटाटा लगा दिया। वो साधारण सा कमरा उसके चटकीले रंगों से थोड़ा जीवन सा लगने लग गया। मेरी अपने बिस्तर पर बैठ गई, चित्र को देखती रही, चुपचाप खड़ी रहकर समर्थन देती रही। लेकिन वांडा उसके प्रति कितनी दयालु थी, अच्छी थी, किसी भी तरह से। टीयर्स blurred her eyes, and she gazed for a long time the picture. Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. But it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. Why, it really looked like her own self. Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she said over to Peggy's. क्यों भाई? Really look like her own mouth? Why, it really looked like her own self? Wanda had really done this for her. Excitedly, she ran to over Peggy's. उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो देर तक उस चित्र को निहारती रही। उसने जल्दी से अपनी आंखें पोंछी और गौर से देखा। पोशाक के रंग इतने चटकीले और स्पष्ट थे। उसने चेहरा और सिर तो गौर से देखा ही नहीं था, लेकिन वो तो एकदम खुद के जैसा ही दिख रहा था। मेडी बिल्कुल उसके अपने मुंह जैसा लग रहा था। वो उसके खुद के जैसा क्यों दिख रहा था? वांडा ने वाकई में उसके लिए ही बनाई थी। उत्तेजित होकर पैगी की ओर भागी। पैग, शी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। ए,
वो जरूर बोली। पैक, वो बोली मुझे अपना वाला चित्र दिखाओ, क्या हुआ? व्हाट इज द मैटर? आस्क्ड पैगी. They clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. Matty carefully raised it. पैगी से बोली मुझे अपना वाला चित्र बताओ, क्या हुआ? पैगी ने जैसे ही पूछा, जैसे ही शोर मचा थी उसके कमरे में आए, वांडा का चित्र बिस्तर पर उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ था। मैडम ने बहुत ध्यान से उठाया। To raise this, look, she drew you, that's you, she exclaimed, and she had and face of this picture did look like Peggy. What did I say? Said Peggy. She must have really liked us anyway. मैरी ने बहुत ध्यान से उस चित्र को उठाया। देखो, उसने तुम्हारा चित्र बनाया था, ये तो तुम ही हो। वो चिल्लाई। उस चित्र का मस्तिष्क और चेहरा एकदम पैगी जैसा था। और मैंने क्या कहा था? पैगी ने कहा था वह हमें जरूर चाहती होगी किसी भी तरह से। यस, शी मस्ट हैव एग्रीड मैडी, एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट came every time, and she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over the group of laughing girls after she had walked up, and she were 100 of them all lined up. हाँ, वह ये जरूर चाहती होगी। मैडम सहमत थी। उसके आंसू उसने अपने आंसू छिपाने की कोशिश की, जो कि हर समय निकल आते थे। वो ज़रूर चाहती होगी, ये मैडम सहमत थी, और उसने अपने आंसू छिपाने की कोशिश थी जो हर समय निकल आते थे। जब वांडा के बारे में सोचती थी कि कैसे स्कूल के प्रांगण में, आंगन में सुनहरी धूप में अकेली खड़ी वांडा दुखी मन से उन हंसती हुई लड़कियों के झुंड को देखा करती, और जब वो एकदम सो है सब लाइन में लगी हुई है कहकर निकल जाया करती थी। तो स्टूडेंट, ये 100 ड्रेसेस सेकंड पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है आप लोगों ने बहुत लुत्फ़ उठाया होगा, और ज़रूर आप लुत्फ़ उठाते रहिएगा, बार बार समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। एक बार समझने से कुछ नहीं होगा, बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। अपनी ओरिजिनल किताब जो है फर्स्ट क्लास, उसको भी पढ़ते चलिएगा। उसके साथ जैसे आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, मेरे समझाने वाले को पॉज दिया, फिर खोल दिया, फिर उसको समझने की कोशिश की, फिर पैराग्राफ पढ़ा, फिर पॉज दिया, फिर खोला, फिर समझने की। इस प्रकार से आप करते रहेंगे एक एक शब्द को, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएंगी। कितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं इससे संबंधित आएंगे, छोटे क्वेश्चंस आएंगे या एमसीक्यूज आएंगे, शब्दार्थ, किसी में भी आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। और हर प्रकार से आप इस तरह से कोशिश में रहते रहेंगे कि आप बिल्कुल नंबर 1 आने की कोशिश कर सकते हैं। इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हुए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिएगा, अव्वल नंबर से पास होइएगा। हैव ए वेरी नाइस लाइफ। हियर आई एम डिपार्टिंग टिल नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। बी हैप्पी एंड go through properly all of these lessons. Thank you very much.